آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے تحت ایک ٹوکن مظاہرہ کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا، یعنی کہ اپیل کی گئی تھی کہ 15 نومبر کو ایک ٹوکن مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہ ٹوکن مظاہرہ ٹوک 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 کر کے ٹکرا گیا، یعنی سونامی بن گیا۔ جی ہاں، سندھ بھر کی سطح پر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی دھرتی پر بلدیاتی ملازمین کی چیخ و پکار نے وہ دھم مچایا کہ رہ نام اللہ کا۔ ابتدا میں آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ کی صدارت میں کراچی پریس کلب پر شدید مظاہرہ کیا گیا، اور یہاں پر جہاں تمام بلدیاتی یونین جن کا کراچی سے تعلق ہے، نام کیا بتائیں، وہ شریک تھے، لیکن یونائٹڈ ورکرز یونین گلشن اقبال یعنی بلدیہ شرقی کے گل اسلام جو کہ ٹریفک حادثے میں زخمی ہو گئے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیر علاج ہیں، وہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تاہم پریس کلب پہ ہونے والے مظاہرے میں شدید نعرے بازی کی گئی، اور یہاں تمام یونین جس میں کراچی وارڈن سیوریج بورڈ ہو یا تمام ڈی ایم سیز ہو یا کے ایم سی، تمام مشین پول ڈپارٹمنٹ، تمام عہدیداران اور کارکنان موجود تھے۔ نعرے بازی سنیے کیا کر رہے تھے۔ اس موقع پر صدر کے ایم سی یونین سید ذوالفقار شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، یہ سنیے۔ احتجاج کا مقصد آن لائن ٹریجری کے ذریعے تنخواہوں کی ادائیگی ہے۔ اس کے لیے احتجاج صوبہ سندھ کے کراچی کے برادری کی طرف سے، جس میں ہمارے ڈی ایم سی کے اور سرکٹ کے ملازم موجود ہیں، ان کا جو احتجاج ہے، اور اس کے بعد ہم جائیں گے صدر ٹون، وہاں پہ جو ملازمین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کے لیے لہٰذا یہ احتجاج حکومت کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ بلدیاتی ملازمین ہیں اور ان کو اگر تنخواہیں تیزی سے نہ دی گئی تو 29 نومبر کو پورے صوبے کے بلدیاتی اداروں میں تالے لگے۔ تاہم حیدرآباد میں آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری اکرم راجپوت شاہراہوں پر آ گئے اور انہوں نے زبردست احتجاج کیا، اور شاہراہوں پر جہاں وہ گشت کرتے رہے وہیں لوگوں کو بتاتے رہے کہ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے تحت بلدیاتی ملازمین کو جو مارا گیا ہے اس کے خلاف وہ شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ حیدرآباد والے بھی پریشان کہ بلدیاتی ملازمین تو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، لیکن آج انہوں نے وہ بھی کھل کر لوگوں کو بتا دیا کہ بلدیاتی ملازمین کو لاوارث سمجھا جا رہا ہے۔ تاہم اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اکرم راجپوت آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری نے کیا کہا، سنیے انہی کی زبانی۔ یونین سندھ کے پلیٹ فارم سے اپنے اس حق کے حصول کے لیے آج سندھ بھر کے پریس کلبز پر بلدیاتی ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ 29 نومبر سے پہلے سندھ کے بلدیاتی ملازمین کی تنخواہوں کو بذریعہ ٹریجری شروع کرانے کے نوٹیفیکیشن کا اجرا کرے، ورنہ 29 نومبر سے جو سندھ کے بلدیاتی ملازمین حکومت کو اور بیوروکریسی کو سرپرائز دیں گے وہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ سندھ بھر میں ان بلدیاتی اداروں کی تمام سروس بند کر دی جائے گی، مکمل طور پر کام چھوڑ ہڑتال شروع کر دیا جائے گا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری چیف سیکرٹری بلدیات اور اے جی سینڈ اور ان لوگوں پر عائد ہوگی جو ٹریجری کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے اس حق کی راہ میں
रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम गलत है तो इसका इतलाक फिर जो सिंध सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए मुलाजमीन को आपने दिया हुआ है वो किस तरीके से सही है। अगर हम सिविल मुलाजिम नहीं हैं तो हमारे ऊपर फिर आप लोग किस तरीके से अहकामात सादर करते हैं। हम वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो इस मामले पर जो सिंध सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए अफसरान ने लाजमी तौर पर ब्रीफिंग दी हुई है उस ब्रीफिंग को झुटलाते हुए सिर्फ और सिर्फ सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाहें ट्रेजरी से शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी कराएं। जबकि सक्खर में ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अली मर्दान शेख शाहराहों पर मौजूद थे और शेर की तरह ठाड़ रहे थे और यहाँ पर पूरा मीडिया भी पहुँच गया था क्योंकि अली मर्दान की धाड़ थी, कोई बात नहीं। लेकिन इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। सिंध के बलदाती मुलाजम का जुल्म करने सिंध के बलदाती मुलाजम का जुल्म करने सिंध के बलदाती मुलाजम का नाइंसाफी करने वारंते सिंध के बलदाती मुलाजम का नाइंसाफी करने वारंते सिंध के बलदाती मुलाजम ने कैदी ने करने वारंते सिंध के बलदाती मुलाजम ने कैदी ने करने वारंते जीना होगा मरना होगा जारी आहे जारी रहंदी जीना होगा मरना होगा जीना होगा मरना होगा जारी आहे जारी रहंदी। जबकि ढेरकी में भी प्रेस क्लब के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, जहां सदर मुनीर अहमद सोमरो, यार अब्बास चौथाई, शौकत अली दाऊद पोटा, जनरल सेक्रेटरी जम्मू खान बरोही, मोहम्मद रहीम मेहर, खालिद हुसैन मेहर, आबिद हुसैन बेटो, पप्पू मेहर और रसूल बख्श मेहर शामिल थे। उन्होंने भी धुआंधार मुजाहरा किया और पूरे शहर को बता दिया कि बल्दियाती मुलाजमीन को लावारिस बना दिया गया है, ताहम वो 29 नवंबर को तालाबंदी करेंगे। ये टोकन एहतजाज है। इस मौके पर इन्होंने कहा, क्या सुनिए इन्हीं की ज़बानी। तकरीबन 45 या 46 जेके डिपार्टमेंट है सिंध जा सवाइ टेज़री टाउन कमेटी को बल्दिया को सवा बाक़ी सभु टेज़री आहिनि। जॾहिं ॿिया सभु टेज़री आहिनि त असांखे बि टेज़री कयो वञे त असांखे बि पंहिंजे टाइम जे हिसाब सां ॿियनि खे पघार मिले थी त असांखे पंहिंजे टाइम ते पघार ॾिए। रोज़ हर पघार ते असांखे कटौतियूं आहिनि, कंहिं महिल कंहिंखे पघार आहे कंहिं महिल कोन्हे। किस्ता कंहिं मां अचनि थियूं त ॿ महीना 3 महीना पघार आहे। मूंखे ॿुधायो कहिड़ो डिपार्टमेंट आहे सवाइ बल्दिया को जेके 2 महीना 3 महीना पघार मिले। असां वधीक सिंध को सिंध के बिलावल भुट्टो साहब के ॿियनि खे असांखे जल्द असांखे टेज़री कयो वञे जीअं असां पंहिंजूं पघार टाइम सां वठी सघूं। शुक्रिया। कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल पास हो जाते हैं, हम पाकिस्तान के अवाम नहीं हैं, हम आला अख्तियारी से ये मुतालबा करते हैं कि बड़ा मेहरबानी करके हमें जो है ना ट्रेजरी का हक दिलाया जाए और हमारे जो भी बल्दियाती मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई फौरी तौर बंद की जाएँ। जबकि टंडोवाला यार में भी ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के तहत ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। म्यूनसिपल कमेटी टंडोवाला यार से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई और इसमें भी फेडरेशन सिंध के नायब सदर जलील बिलोच, फेडरेशन सिंध के मीडिया कोऑर्डिनेटर जुल्फ़ार मशहूरी, फेडरेशन हैदराबाद डिवीज़न के नायब सदर इजाज़ सोलंगी और दीगर जहां मौजूद थे, उन्होंने भी धमाधम मस्त कलंदर किया और इस मौके पर खिताबात भी किए गए और साफ साफ कह दिया कि दमादम मस्त कलंदर होगा। ये नहीं समझना कि हम ठंडे हो जाएंगे और यकीनी तौर पर ये वो लोग हैं जो ठंडे नहीं होंगे, ये अब गर्म हो चुके। हम बार बार सड़कों पर आए, एहतजाज किए, फिर भी सिंध गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो ना दी। हम अपील करते हैं वज़ीर आला सिंध से, पीपल्स पार्टी चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी से कि खुदा के लिए बल्दियात के मुलाजमीन पर तवज्जो दी जाए। ये मुलाजमीन 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, ज़ाहिर है ना छुट्टी होती है। कोई भी इवेंट होते हैं, कोई खुशी के मौके होते हैं तो तमाम इदारे बंद होते हैं। वो लोग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन हमारा इदारा उन तमाम दिनों में आवाम को सर्विस देता है, दिन रात एक करके मेहनत मुशक्क़त करता है, लेकिन बदले में क्या हमें तनख्वाह भी टाइम पर अदा नहीं की जाती। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये रियासत हमें हक देता है, यहाँ का आईन हमें हक देता है
कि हमारी तनख्वाह ऑनलाइन ट्रेजरी होनी चाहिए। काफ़ी अफसरान है सिंध गवर्नमेंट के अंदर जिन्होंने रिटर्न के अंदर दिए कि भाई इनकी सैलरी ट्रेजरी के जरिए होनी चाहिए, उसमें कोई कबात नहीं है। यही सैलरी आप हमें ODD शेयर के जरिए भेज दो, हम यही कह रहे हैं, यही सैलरी आप हमें ऑनलाइन के जरिए भेजो। उन खां पोइ बि असांजा मुलाज़िम छो परेशान आहिनि, छाजे करे का शइ जी ख़बर त असांखे पए। गवर्नमेंट में जेके आला हुकुमरान वेठा आहिनि उन्हनि खे सोचणु खपे, पंहिंजो सोचनि था, हिन मुलाज़िमनि जो कोन था सोचनि जेके 24 कलाक हर वक़्तु हर कम में बीठल हूंदा आहिनि। इन करे असां भरपूर तरीक़े सां एतिजाज कंदासीं ऐं अॻियां हली इन दायरे खे वधाईंदासीं। असांजा हक़ असांखे ॾिना वञनि ऐं मुलाज़िम बल्दिया जा मुलाज़िम आहिनि पूरे आल पाकिस्तान में 3 सूबनि में ट्रेजरी थी वियो आहे। असां सूबे सिंध में ट्रेजरी कोन पियो थिए, छो कहिड़ी वजह आहे, कहिड़ियूं मजबूरियूं आहिनि, कहिड़ियूं सियासी धुरनि खे कहिड़ी मजबूरी आहे त हिननि ग़रीब मुलाज़िमनि खे छो पियो परेशान कयो वञे। इन करे असां सभु यूनियन वारा पूरे आल पाकिस्तान यूनियन जो आवाज़ु खणी रोडनि ते रस्तनि ते ईंदासीं ऐं इहो असांजो आवाज़ु आला हुकुमरान ताईं पहुचियो वञे, न त ॿी सूरत में असां जेको बि एतिजाज दाइरो हूंदो उहो वधाईंदासीं। असां सिंध जी गवर्नमेंट खे अर्ज़ु करणु चाहियूं था कि असां जेके बि जाइज़ मसाइल आहिनि ऐं इहे बहाल कया वञनि ऐं ग़रीबनि सां इंसाफ़ कयो वञे। ग़रीब जेके सॼो ॾींहुं अटे जी चपी में पिसनि था हुननि जो ख़्यालु रखियो वञे ऐं हिन जे दौरे ते महिरबानी करे ग़रीबनि खे हक़ ॾिना वञनि ऐं आलादारनि जी शुक्रिया अदाई महिरबानी। ताहम जामशोरों में भी मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे और रैली निकाली, शाबाश, और उन्होंने भी बैनर्स उठाए हुए थे। आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के तहत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की धरती पर आज जामशोरों के बल्दियाती मुलाजमीन ने अपने रहनुमाओं के हमरा दम मस्त कलंदर किया, जबकि शिकारपुर के बल्दियाती मुलाजमीन कैसे रह सकते थे और आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के रहनुमा बाहर आ गए और उन्होंने पोस्टर और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिसपे नारे दर्ज थे और उन्होंने सिंध हुकूमत को बावर करा दिया कि शिकारपुर के बल्दियाती मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज हैं। जबकि लाड़काना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त रैली निकाली गई और शदीद एहतजाज किया गया, जहां पर भी शदीद नारेबाजी होती रही और दमादम मस्त कलंदर करके हिला के रख दिया कि ये सिंध की धरती है और बल्दियाती मुलाजमीन लावारिस नहीं है। और यहाँ पर भी मेहनत कश लेबर यूनियन CBA के सदर, मरकज़ी सीनियर नायब सदर आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन रसूल बख्श शाहानी, चेयरमैन मुनव्वर लिसान, सीनियर नायब सदर गुलाम असगर जतोई, गुलामुल्लाह हजानी, नायब सदर शफीक अहमद कारो, जहीर लगारी, शाम लाल करार, जनरल सेक्रेटरी, सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कलंदर बख्श शाहानी, डिवीजनल चेयरमैन मोहम्मद दाऊद अब्बासी, आशिक अली डेटो खान, हुसैन सोमरो, अब्दुल जब्बार चांदियो, मक्की ज्ञान चंद, गुल हसन, मजहर अली, बशीर अहमद जोनीजो और दीगर भी थे। और उन्होंने भी दमादम मस्त कलंदर करके बता दिया कि हम 29 नवंबर को तालाबंदी करेंगे, ऑनलाइन ट्रेजरी तनख्वाह हमारा एजेंडा है। ताहम नौशर फरोज़ में भी ज़िला कौंसल नौशर फरोज़ और म्यूनसिपल कमेटी के तहत मुश्तरका तौर पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यहाँ पर भी आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के रहनुमाओं के साथ साथ बल्दियाती मुलाजमीन की बड़ी तादाद देखी जा सकती है जो कि शदीद नारेबाजी कर रहे थे और ये सिंध की धरती से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ताहम रानीपुर में भी बल्दियाती मुलाजमीन अपने रहनुमाओं के हमरा बाहर आ गए और उन्होंने भी शदीद एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी करते रहे कि हम भी पीछे नहीं। टाउन कमेटी मीरो खान लाड़काना में भी ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया और यकीनी तौर पर दमादम मस्त कलंदर किया गया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और यही वजह थी कि यकीनी तौर पर वो पीछे हटने वाले नहीं हैं कि हम भी आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के परचम तले एक है और हम पीछे नहीं हैं और तमाम बल्दियाती मुलाजमीन की मुश्तरका जद्दोजहद में साथ साथ हैं। जबकि जैकबाद में भी ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया और यहाँ पर भी एक बार फिर जो कि गुज़िश्ता जैकबाद वाले मुसलसल एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और कभी पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और यकीनी तौर पर जैकबाद वालों ने भी आज हक अदा कर दिया और यहाँ पर भी मुजाहिरीन शदीद नारेबाजी करते रहे। आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के तहत यकीनी तौर पर एहतजाज जारी है और सिंध की धरती को आज हिला के रख दिया गया है। कराची से कश्मीर तक बल्दियाती मुलाजमीन, हम बहुत सारी तस्वीर आपको नहीं दिखा पा रहे इसलिए कि हमारे पास फुटेज और खबर
पूरी मौजूद है। तहम ये हो क्यों रहा है, ये लॉलीपॉप क्यों दी गई, ये हम आपको बताते हैं। आज से 1 साल पहले सिंध की धरती के तमाम बल्दियाती मुलाजमीन ने जहाँ धरना दिया था, शदीद एहतजाज किया था और सिंध सेक्रेटेरिएट का घेराव किया था, वहाँ उनको लॉलीपॉप दी गई थी। और सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह ने अल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के चेयरमैन जुल्फ़िकार शाह के हमरा क्या कहा था, बल्कि उन्होंने ही नहीं, जुल्फ़िकार शाह ने खुशखबरी क्या दी थी, हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। वो क्वारी के लिए कमेटी बना दी गई है, वो कमेटी आज काउंसिल की सतह पे काम करेगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ट्रेजरी से तनख्वाह को यकीनी बनाने की कोशिश ये यकीनन वजारत बल्दियात की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी। ऑनलाइन ट्रेजरी तनख्वाह के लिए 1.5 साल गुजर गया, लेकिन लॉलीपॉप जभी तो आज ये सरापा एहतजाज हैं। हम तो समझ रहे थे ये टोकन होगा, लेकिन ये टोकन नहीं था, ठोकर था। और यकीनी तौर पर 29 नवंबर को सिंध के बल्दियाती इदारे बंद होंगे। वजारत बल्दियात अमली तौर पर ये सब आवाज़ें देख ले कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की धरती के बल्दियाती मुलाजमीन परेशान है। और ये सिंध हुकूमत और वजारत बल्दियात के लिए भयानक तस्वीर है कि अगर ऑनलाइन ट्रेजरी तनख्वाह के लिए अभी भी लॉलीपॉप दी गई तो यकीनी तौर पर फिर सिंध की धरती यानी तमाम बल्दियाती इदारे बंद होंगे। 3-4 दिन बंद हुए तो आलमी सतह पर सिंध की धरती गलाजत का ढेर और आलमी सतह पर ख़बरों की सुर्खियाँ बन रही होंगी, फिर शर्मिंदगी होगी और ये बल्दियाती मुलाजमीन सुरखरू होंगे। ये आपके सर का ताज हैं जिन पर आप फ़ख्र करते हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 6 माह से मुसलसल एमरजेंसी की हालत में रहे, कोरोना में जहाद किया, अमली तौर पर सफाई सुथराई, अस्पतालों में सफाई सुथराई, ये अपनी जानों पे खेल गए। फिर ईद उल फितर, ईदगाहों के अतराफ सफाई, रमज़ान मुबारक में काम किया और उसके बाद ईद उल अज़हा, फिर मुहर्रम उल हराम, फिर ईद मिलादुन नबी, फिर बारिश, लेकिन फिर भी ये लावारिस, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन जाग गए। आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सिर्फ हमने आपको सिंध की तस्वीर दिखाई है, वरना मुल्क भर में इनसे यकजहती का इजहार किया जा रहा है। और यकीनी तौर पर हम कोशिश करेंगे कल वो तस्वीर भी दिखा दें कि सिंध की धरती में जिस तरह मुलाजिम लावारिस हैं, उनके लिए यकजहती का इजहार मुल्क की सतह पर किया जा रहा है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।